Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I welcome you all in the class of Srimad Bhagavatam. So let me welcome everybody from the YouTube. I don't think so. In the morning lecture, many were missing. Like in the morning lecture on the YouTube, and they were not. I think so. Only 60, 70 people were watching. So they can all watch now. It's already on the YouTube now. Nagina Manchanda, Haribol Anujulka, Jeetpal Singh, Usha Goyal, Shweta Rao, Shireen Chaitram, Anita Verma. So there's Jyoti Dhameja, Reena Sapra, Priyanka Sharma. It's running away. Akshira Jataria, she says morning lecture was wonderful. Haribol, Neha, Amita Mota, Garima Pachori, Gita Rupwal. Just a minute. Seema Sanda, Monica Madan, Sucheta Sinha, Anjali Malik, Guni Devi, Ujjwala Huja. There is Anjali Ujjwala Huja, Shahi Soni, Deepti Gera, Monica Nagana, Naresh Bali, Sushma Sharma, Binod Mishra, Abhilasha Jaiman, Neeta S, Vikas Kumar, Geeta Rupwal, Vinod Mahendru, Vrinda Vasu, Minu Kumari, Priti Sarabja, Prasad Divian, Amrita Chima, Komal Garg, Divya Kanwar, RK Investment, that's Shilpa Chauras, I remember her now, Mayan Chawla, Jui Paul, Minakshi Kaide, Neeta S, Abhilasha Jaiman, Vinod Mishra, Sushma Sharma, and Mukesh Sharma, Angela Singh, Nitin Sharma, Anchal Kalra, Asta Hriani. And from the Facebook, let me see, there are many have joined in. Preetu Singh, Sonia Adhikari, Tati Tusu, Amit Datta, Durganita, Suchita Pandey, Kunal Gatak, that's Chandra Sarkar, Ashish Raja, Sunil Girdhar, Sagar Khandelwal, Kalpana Verma, Harsh Thakur, Kanuj Dhar, Sandy Singh, Bhavna Arora, Leena Kaul, Santosh Vaswani, Deepak Barman, Dinky Sharma, Uttam Bahadur, there is Vivek Tiwari, Swati Sharma, Sonali Bansal, Virginia, Ranu Mahajan, Ravindra Pandit, Vipul Nagar, China Vishal, Bhavna Wadekar, Kavita Nair, Vidya Khatamukhi, Anil Mishra, and many more. So rest names I'll take later. Sapna Gupta, Kavita Narula, rest names later. So there is, we have today to finish the passing away of Bhishmadev. Bhishma Pitama apna dev त्यागने वाले हैं, and so we have to, आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं. Sonali Bansal says it's a birthday, so let's all chant together for her and for everybody, those who are sharing their birthday or anniversary with her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's Jimshed, the GST from ISKCON Pakistan. We welcome him also. So many people are still joining us. So let's start it. So Bhishma Deva jo hai, he कहते meditate on Shri Krishna. So while leaving the body, he is meditating on Shri Krishna. और वो अभी जब देह त्यागने वाले हैं, उससे पूर्व भी कुछ श्लोक बोलते हैं. उन श्लोकों की चर्चा आज करेंगे और उसके बाद समापन होगा इस अध्याय का, जहां वो अब देह त्याग देंगे. So Bhishma Pitama Yudhishthir को ज्ञान दे रहे हैं. कल हमने किया था the 9 advices he gave to the humanity. So he said the 9 things what the human species must follow. So वो कल हमने की थी the 9 things. So I would request all of you to please go ahead with that and see to it again and again, revise them. They are for us. So कहते हैं कि by pure meditation looking at Lord Krishna, he at once freed from all material inauspiciousness. तो वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण के सामने खड़े हैं, कृष्ण को देखते ही सारी inauspiciousness चली जाती है. And he was relieved of all the body pain caused by the arrow wounds. इतने सारे शरशैया पे सो रहे हैं. He is lying down on the शरशैया, उस पे लेटे हैं. किस पे? तीरों की सेज है, तीरों का बेड है. तो it's a
तीरों के बेड पर लेटे हैं, शरशैया कहा गया उसको, शरशैया पर विराजमान है और दुख नहीं है, तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि कृष्ण सामने है. सो दिस प्रूव्स दैट कृष्ण, व्हेन कृष्णा इज देयर, तो मृत्यु के समय तकलीफ जो है वो खत्म हो जाती है. So, thus all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. तो भगवान की ओर देख रहे हैं और दुख तकलीफ कम हो गया है, बिल्कुल है ही नहीं. तो अब वो बोलते हैं. अब ये श्लोक हैं जो 32वें श्लोक से श्री भीष्म उवाचा. अब भीष्म देव खुद कह रहे हैं. भीष्म देव कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभूमने स्वसुखमुपगते कच्चित् दुहितं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वन् प्रवाहः. अब कहते हैं भीष्मदेव said, let me now invest my thinking, feeling and willing. तीन चीजें ये हमने भगवत गीता में भी की थी. तीन चीजें वो मांगते हैं. भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें मेरे लिए करो. That is thinking, feeling and willing. So thinking, सोचना भगवान के लिए. Feeling, भगवान के लिए ही अंदर फीलिंग्स होना. The love and care for Krishna. सोचना भी उनके लिए, फीलिंग भी उनके लिए, and then willingness to do it. So हम अगर दो चीजें होती हैं तो we lack sometimes the willingness, the determination. So when we lack the willingness, this will become difficult. माया पकड़ लेगी. जैसे ही willingness कमजोर होगी, माया पकड़ लेगी. So thinking should be very powerful कि हाँ, मुझे भगवान से जुड़ना है, मुझे भगवान के लिए ही करना है. So जब सोच अच्छी होगी, because thoughts come from mind is the generator of all the thoughts. तो मन में सारे विचार उत्पन्न होते हैं. तभी भगवान ने मन मांगा है. गीता में कहा है, अपना मन मुझे दे दो, मुझे देकर युद्ध करो. अर्जुन से कहते हैं, मन और बुद्धि मुझे देकर फिर युद्ध करो. So that is for us. कलयुग में भगवान हमें भी कह रहे हैं, अपना मन मुझे दे दो. तो यहाँ पर कहते हैं, भीष्मदेव कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता द्वितृष्णा. तो कह रहे हैं कि अपनी thinking, feeling and willing, now invest my thinking, feeling and willing, which were so long engaged in different subjects. ये भीष्म देव कह रहे हैं, which was so long, it was absorbed in occupational duties. मैं और काम में बिजी रहा, मैंने और जगह इन तीनों को लगाई रखा. So in various different subjects of occupational duties, in all powerful Lord Shri Krishna, he is always self satisfied. और भगवान self satisfied है. भगवान को कोई नहीं चाहिए. भगवान अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण. So पूर्णमिदम, कृष्ण is पूर्ण. तो वो गीता में बताते हैं कि मैं पूर्ण हूं. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं आप पूर्णपिदम है. So he is complete. He is सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है. तो he is complete in himself. He is always self-satisfied, and Krishna is always self-satisfied. He enjoys transcendental pleasure by descending on the material world, although from him only the material world is created. Material world उनसे ही बना है और वो सिर्फ यहाँ आते हैं अपने आनंद के लिए. उनको अपना आनंद के लिए आते हैं. He does not come for, he is not bound to come. जैसे हम तो bound है, हम तो we have been bound by our own karmas. तो हमने अपने कर्मों के अधीन होकर हमें इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, हमें इस संसार में आना पड़ता है. So but he does not need to, he is not bound to come. फिर कहते हैं, श्री कृष्ण इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुन. सो अब अर्जुन के बारे में कहते हैं, कृष्ण आप तो अर्जुन के बड़े ही मित्र हैं, सगे मित्र हैं. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamala tree. So तमाल वृक्ष का जो रंग है वो भगवान ने लिया है. ये भीष्म पितामह कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, because Krishna is right before him, the supreme power is right before him. So अब उनकी चर्चा करते हैं. His body attracts everyone in the three planetary system. May his glittering yellow dress and his lotus face covered with the paintings of sandalwood pulp be the object of my attraction. मैं किस चीज को देखूं, किस पे मेडिटेट करूं, मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हूं, उनके उस सुंदर चेहरे की ओर.
जिसपे चंदन से, सैंडलवुड से अनेक अनेक सुंदर तरह से उसको सजाया गया है। तो आप देखते हैं कभी वृंदावन में श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर भगवान है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार से उनके फेस को सजाया जाता है सैंडलवुड से, बिकॉज कृष्णा डज दैट, उनके फेस पे ऐसा है। एंड ही इज ग्लिटरिंग येलो ड्रेस, और उनको पीत वर्ण क्यों अच्छा लगता है? वो राधा रानी का रंग है। ही लव्स दैट कलर बिकॉज दैट इज राधा रानी's कलर। पीत वर्ण, वो राधा रानी का रंग है, गोल्डन येलो। शी इज एज फेयर एज गोल्ड, शी इज गॉट दैट मॉल्टन गोल्ड कलर। तो भगवान उस कलर, भगवान का फेवरेट है, वो धोती उसी कलर की पहनते हैं, उनकी कांति जैसी, उनकी चमक जैसी। एंड राधा रानी का फेवरेट है ब्लू कलर, क्योंकि वो ब्लू कलर जो है वो भगवान का रंग है। सो ही इज ब्लूइश इन कलर, सो राधा रानी लव्स द ब्लू कलर। And he is the object of my attraction, and may I not desire fruitive actions, results. So मैं सकाम कर्मों की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि मैं उनका वो सुंदर मुख देख रहा हूँ। So तीन चीजें भीष्म पितामह इस आज के श्लोक में कह रहे हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तीनों चीजें दे शुड बी किसकी तरफ होनी चाहिए? कृष्ण की तरफ। So think about him, feel about him, and be willing to surrender to him. So this is what he's saying. So, and Krishna is Arjun's intimate friend. और अर्जुन पांडवों में ये तीनों चीजें थी। वो कृष्ण के लिए ही सोचते थे, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसे ही करते थे। So they were all surrendered to Krishna. When Sri Krishna by his own internal pleasure appears on the earth, he does so by the agency of his internal potency. The attractive features of his transcendental body are desired by the three worlds. उनके जो beautiful, उनके जो अंग हैं, वो तीनों लोकों में सब लोग तरसते हैं उनके दर्शन करने के लिए। सब देवी देवता को भी सरलता से दर्शन नहीं मिलते हैं, वो भी तरसते हैं उनको दर्शन के लिए। सो एवरीबडी लिंगर्स फॉर हिज, उनके दर्शन के लिए। और भीष्म पितामह कह रहे हैं वो मेरे सम्मुख खड़े हैं। सो as a great fighter, Bhishmadev was relishing this, and he was relishing this now on the bed of arrows. He's lying on the bed of arrows, the death bed. तो आगे कहते हैं, on the battlefield where Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of, वो भगवान को वो मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को जो उन्होंने कहाँ देखा? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देखा। सो वो वहां पर जो देखा है उसको कह रहे हैं कि भगवान के जो बाल, लंबे बाल है, घुंघराले बाल है और लंबे बाल है। सो भगवान के वो जो बाल है, वो उसमें मिट्टी, युद्ध स्थल की जो मिट्टी थी उड़ उड़कर उनके बालों में आ गई, तो कलर एशन ग्रे कलर हो गया, due to the dust raised by the hooves of the horses, and because of his labor beads of sweat. और भगवान रथ आंक रहे हैं और उनमें उनको पसीना भी आ रहा है, तो कह रहे हैं कि उनका जो पसीना है वो उनके फेस पे चमक रहा है मोती की तरह। And all these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. और भीष्म पितामह ने जो तीर चलाए हैं वो भगवान को लगे भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनसे उनको खून भी निकला है थोड़ा, वो वुंड्स उनको लगी है मेरे एरो से, पर उन्होंने तो वो एंजॉय करी है। एंड they were enjoyed by him. Let my mind thus go on to Shri Krishna. और मैं ऐसे मन को कहता हूँ तो कृष्ण पर मेडिटेट कर। So मैं अपने मन को उनके ऊपर केंद्रित करता हूँ। So this is how he is teaching. भीष्म पितामह बेड ऑफ एरोस पे, शठशैया पे लेटे हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कल हमने 9 एडवाइसेस की थी, आज ये 3 चीजें फिर से वो बता रहे हैं। इनको याद रखना है आपको। The 3 things are thinking, feeling and willing. ये तीनों चीजें भगवान के साथ जुड़ने के लिए। सो वो ये कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि भीष्म पितामह जो है, इट अपीयर्स, प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म इज रिपेंटिंग द एक्शंस ही कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द लॉर्ड, बट फैक्चुअली द लॉर्ड्स बॉडी वाज नॉट एट ऑल पेन्ड ड्यू टू हिज ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस, हिज बॉडी इज नॉट अ मैटर। तो लगता है कि बाहरी रूप से लगता है कि भगवान को वो तीर लगे या उनको खून निकला, बट कृष्णा वाज हार्डली, उनको कुछ भी उससे रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो बड़े आचार्य हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, वो कहते हैं कि devotee in the humor of conjugal love with Lord remarks very sentiently in this regard. He says that the wounds created on the body of the Lord by the sharpened arrows of Bhishmadev
और as pleasing to the Lord as the biting. तो जैसे कोई प्रेमिका और प्रेमी मिलते हैं, बिल्कुल भक्त के साथ भगवान का रिश्ता वैसा है। जैसे भक्त से कोई पेन भी आती है, वो तीर भी लगा तो ऐसा था कि क्योंकि वो प्रेमी है और भगवान और भक्त का रिश्ता बिल्कुल प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका का है। सो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी तुलना उसी से करते हैं कि वो प्लेजर देता है, क्योंकि भगवान जानते थे भीष्म देव जो है वो पूरे शरणागत हैं भगवान को, और उन्होंने भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि शस्त्र उठवाऊंगा। और उनकी प्रतिज्ञा, भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने शस्त्र, ये सारा सीन रचा गया। नहीं तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है, वो तो कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं विद दिस ग्लैंस ओनली। तो वो कुछ भी करने को, वो करने के लिए सक्षम है, तो ही कैन डू एनीथिंग। तो हमें उसकी रंच मात्र भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक मनुष्य का रूप में है और वो मनुष्य जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर आवर सेक, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर अस, सो इट इज देयर। हम वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये कर रहे हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, और अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं, भीष्म पितामह को आनंद दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, आगे कहते हैं, सपदे सखी वचो निष्माय मध्याय। तो in obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna entered the arena of the, अभी वो कुरुक्षेत्र की बात को याद करके भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के सामने कुरुक्षेत्र का वो युद्ध स्थल बता रहे हैं कि आपने कैसे कैसे क्या किया। So in obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna entered the arena. अर्जुन कहता है मध्य में ले चलो, भगवत गीता में अर्जुन कहता है रथ को मध्य में ले चलो। तो यही बात भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान अपने मित्र, अपने भक्त का कहना मानते हुए उसका रथ हाँकते हैं, और उसके कहने पर रथ को दोनों सेना के मध्य में ले आए। दुर्योधन, और इधर दुर्योधन के सैनिक थे, उधर अर्जुन पांडवों के सैनिक थे। एंड देयर ही शॉर्टन द लाइफ स्पैन। और भगवान ने क्या किया वहां, उन्होंने अर्जुन के जो शत्रु थे उनकी आयु कम कर दी, उनकी आयु एकमात्र दृष्टि से ही कम कर दी। That his bias, he shortened the lifespan of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed on that Krishna. So वो बार बार कह रहे हैं, मेरा मन, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं कि हे मन, उसी कृष्ण पर, उसी भगवान पर तू केंद्रित हो जा, जिस भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है, जिस भगवान ने अर्जुन के रथ को मध्य में लाए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और जिन्होंने एक मात्र देखने से ही कौरवों की आयु को कम कर दिया, कौरवों के हृदय में बैठे हैं, जानते हैं कौरवों की इच्छा क्या है, कौरव भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान ने उनकी आयु ही कम कर दी है कि वो पांडवों के द्वारा मारे जाएंगे। When Arjun was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated. अब अर्जुन भी विचलित हो गया, उसको भी बता रहे हैं भीष्म पितामह, पूरी गीता को नरेट छोटे सार अंश में दे रहे हैं कि वहां क्या हुआ। अर्जुन भी विचलित था, अर्जुन भी मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला गया जब वो कहता है मुझे युद्ध नहीं करना, भगवान का कहना नहीं मान रहा है। और यही बात यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं, and Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. और फिर भगवान ने वहां भागवत गीत गाया और अर्जुन को उसकी जो इग्नोरेंस थी, डार्कनेस थी, जो उसके अंदर अंधेरा था, उसको खत्म कर दिया। सो ऐसे ही भगवान, उन भगवान पर मुझे मेडिटेट करना है। भीष्म पितामह अपने आप से कह रहे हैं कि उन भगवान पर, तो हमें समझा रहे हैं कि कौन से भगवान, इन भगवान पर मेडिटेट करो जो आपकी इग्नोरेंस खत्म कर सकते हैं, जो आपको ये सुख दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। सो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह, अपनी शरशैया पर हैं और अपने मन से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे उन भगवान पर मेडिटेट करना है। सो कहते हैं कि fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot. तो अब नरेट करते हैं कि fulfilling my desire, भगवान रथ से क्यों उतरे हैं, पहिया क्यों उठा लिया है, क्योंकि भीष्म देव कह रहे हैं मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आ गए।
और हर भक्त की, जिस भक्त ने उन्हें शरणागति दी है, हर भक्त की इच्छा का वो ध्यान रखते हैं, हर भक्त की इच्छा पर वो अपने आप को निछावर करते हैं। दिस इज कृष्णा, ये भगवान है। तो हम भक्त बने तो भगवान हमारी इच्छा के लिए हर कार्य करते हैं। सो यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं, फुलफिलिंग माय डिजायर, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, एंड सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्रॉमिस, अपने ही वचन को तोड़ दिया, अपने ही वचन को तोड़ दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन से कहा है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में निहत्था रहूंगा, और उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा है कि वो वहां पर आ गए हैं। सो क्या किया, क्या उठाया है, आए हैं तो he picked up the wheel of the chariot. He picked up the wheel of the chariot just to, किसके लिए, अपने भक्त के लिए। He fulfilled his promise and did not care, fulfilled his desire of his devotee and did not care for his own promise जो था उसकी केयर नहीं की है। And he ran towards me, ये बता रहे हैं भीष्म पितामह, and he ran towards me like a lion just as he goes to kill an elephant. He even dropped his, और कहते हैं जब भगवान भागे तो उनका पिताम्बर, जो उनका वस्त्र था वो नीचे गिर गया है, जो ऊपर हम देखते हैं ना दुपट्टा देते हैं भगवान, पटका, वो नीचे गिर गया है, येलो, गोल्डन येलो नीचे गिर गया है, क्योंकि इतने वेग से भागे हैं, उनके भक्त अर्जुन के ऊपर बनकर आई है, और भगवान पूरे वेग से भागे हैं भीष्म पितामह की ओर, वो पहिए को उठाकर। And then it says, the battle of Kurukshetra was fought on the military principles, but at the same time in the sporting light, a friend's fight with another friend. दुर्योधन criticized Bhishmadev, alleging he was reluctant, क्योंकि दुर्योधन ने भीष्मदेवा से बहुत कहा, भीष्म पितामह से, कि आप मारना ही नहीं चाहते, आप सक्षम है अर्जुन को मारने के लिए, पर आप नहीं मारना चाहते, आप अभी भी उनसे ही प्रेम करते हैं, तो आप रहते हमारे साथ हैं, आप हैं हमारे ही पैलेस में, हमारे महल में, आपको ये आपके ऊपर, because he had to take care of the Kauravas, he had promised. So he said कि आप अपने उस वचन को नहीं पूरा कर रहे, आप अर्जुन को मार सकते हैं पर मार नहीं रहे। तो अब भीष्म पितामह ने वर्षा कर दी है एरोस की, तीरों की वर्षा की है अर्जुन को मारने के लिए। और यहाँ पर कह रहे हैं, दुर्योधन was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight. By tricks, Arjun took the arrows from Duryodhan and Bhishmadev could understand that this was the trick. क्योंकि उन्होंने, दुर्योधन ने क्या किया, Bhishmadeva promised on the principle of fighting. Bhishmadeva therefore promised that the next day he would kill all 5 Pandavas with the special weapons made for that purpose. जो special पर उसके पास थे, उन जिन तीरों से 5 का वध हो सकता है, वो तीर थे उनके पास। So Duryodhan was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight. और उसने वो तीर के बदले ना जाए, वो तीर अपने पास रखें कि अगले दिन युद्ध में वो ही इस्तेमाल होंगे। So by tricks, Arjun took the arrows from Duryodhan and Bhishmadeva could understand that this was the trick of Lord Krishna. और भगवान तो सबसे क्लेवर है और उन्होंने वो बदल दिए। And then जब उन्होंने, he took a vow that the next day Krishna would have to take up weapons himself, otherwise his friend Arjun would die. ये उन्होंने वाव ले लिया भीष्म पितामह ने कि देखिए मैं कृष्ण से उठवाऊंगा वेपन, शस्त्र उठाना पड़ेगा कृष्ण को अगर अपने मित्र को बचाएंगे, और भगवान को पहिया उठाना पड़ा। फिर ये बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं प्रभुपाद के वर्ड्स पढ़ रही हूँ डायरेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन, otherwise his friend Arjun would die. The next day's fighting, Bhishma Pitama fought so violently that both Arjun and Krishna were in trouble. Arjun was almost defeated. The situation was so tense that he was about to be killed by Bhishmadeva. Arjun was about to be killed by Bhishmadeva. The very next moment, at that time, Lord Shri Krishna wanted to please his devotee Bhishma. So Bhishma ने ये वाव लिया कि मैं उठवाऊंगा, शस्त्र उठवा दूंगा, और उस वाव को रखने के लिए अपने प्रॉमिस से ज्यादा भगवान अपने वचन तोड़ देते हैं। He seemingly broke his own promise. He promised before the beginning of the battle of Kurukshetra that he would remain without weapons and would not use his strength
for either of the parties. But to protect Arjuna, he got down off the chariot, took up the wheel of the chariot, and hurriedly rushed towards Bhishmadeva. And in an angry mood, as a lion goes to kill the elephant. He dropped his covering of the cloth on the way, and out of anger, he और पूरे क्रोध में भरे हुए भगवान आगे भाग रहे हैं भीष्म देवा पर, और भीष्म देवा ने उसी समय शरणागति दे दी है, वो तो शरणागत है पहले से ही. एंड भीष्म देवा कहते हैं, wanted to see Lord take up a weapon to save his friend. The Lord created this situation and Arjuna's death imminent. He stood before Bhishmadev to show that his promise was fulfilled and he had taken up the wheel. और उन्होंने पहिया उठा लिया है. सो भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं, यहाँ दिखा रहे हैं. एंड अगले श्लोक आने वाले हैं, कुछ ही श्लोकों बाद भीष्म देव देह त्याग देंगे. सो दिस इज देयर. फिर कहते हैं, अभी वो यही बता रहे हैं कि कौन से भगवान, ये भगवान है जो क्या करते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं अपने भक्तों की, अपने वचन से फिर जाते हैं, अपने भक्तों के वचन को रख लेते हैं. सो दिस इज कृष्णा. वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं. मे ही लॉर्ड श्री कृष्ण द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु अवॉर्ड्स सैल्वेशन. भगवान ही हैं जो सिर्फ मुकुंद हैं, जो मुक्ति दे सकते हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता, केवल मुकुंद ही दे सकते हैं. सो ये कह रहे हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं, हु अवॉर्ड्स सैल्वेशन, he be my ultimate destination, और वो ही मेरे अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो. तो ये हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारी भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन होनी चाहिए. सो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन शुड बी कृष्णा. सो ही इज टीचिंग अस हियर. His shield was scattered, his body was smeared with blood due to the wounds. And उनके शरीर पे जो भी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जख्म आए, वो भगवान को तकलीफ नहीं दे रहे थे. So this is there at the moment of death, let my ultimate, और ये सबके लिए, ये हम सबका यही विचार होना चाहिए कि जब हमारे अंतिम श्वास निकले तो हम सबके मन में, हम सबके हृदय में यही भाव होना चाहिए. So ये भाव कैसे आता है? ये भाव केवल और केवल आता है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम भगवान के चेतना में होते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, जपा करते हैं, तो हमारा प्रयास हमें भगवान के साथ ये संबंध जोड़ देता है. कृष्णा अंडरस्टैंड्स दैट वी आर सिंसियर, देन ही अंडरस्टैंड्स इट. सो यहाँ कह रहे हैं, एट द मोमेंट ऑफ डेथ लेट माय अल्टीमेट अट्रैक्शन टू बी विद श्री कृष्णा. कृष्ण के साथ होनी चाहिए अल्टीमेट अट्रैक्शन. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna who stood with a whip. और वो अर्जुन का सारथी, उस पे मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, अर्जुन के सारथी पर. Who had a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjun. And those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. So जिन्होंने भगवान के हाथों जिनका वध हुआ, जिन्होंने उनके दर्शन किए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे, वो सबका अंत क्या हुआ, उन सबको मुक्ति मिली है, सबकी परम गति हुई है, सबने कृष्ण के दर्शन किए हैं अंतिम घड़ी में. सो दिस इज देयर. वो व्यक्ति जो है वो भगवान, देयर इज some confusion going on the YouTube. I can just read the comments. Just don't pay heed to this person. And I have tried to report about him, but please, all of you also can report to the YouTube that they can block this person. He's simply creating disturbance, but don't get worried about him. You should ignore his comments because we don't, we never, Bhagwan ki bani mein hum disturb nahi hote hain kisi se bhi. So let him say what he wants to say. Then we can just block him or remove the comments. I'm trying to remove all the comments. So at the time of death, so this is ultimate, death is the truth. So at the time of मृत्यु के समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये भीष्म पितामह सिखा रहे हैं. भीष्मदेव सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करना है. तो कह रहे हैं कि उस कृष्ण पर जिनके दर्शन मात्र से ही अगर मृत्यु, उनके दर्शन, उनके नाम लेने से मृत्यु होती है, जब नाम आखिर में उनका नाम जीवा पर हो मृत्यु के क्षण में, तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, हमारी मुक्ति निश्चित होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
that how we die. So final examination is the death. हम पूरा जीवन तैयारी करेंगे पर examination death है. So this is what Bhishma Pitama has taught. So don't be scared of the death. Let my mind be fixed upon Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadhama. So कह रहे हैं व्रजधाम की जो गोपियां हैं वो उन पर निछावर थी, वो उनके प्रेम में रत थी, वो भगवान के एक स्माइल के लिए सब कुछ कर देती थी. सो ब्रज की गोपियों की चर्चा कर रहे हैं भीष्म पितामह. And they imitated those gopis, those damsels imitated the characteristic movements of the Lord. And that is कि वो जब रसा डांस हो रहा था तो बीच में से भगवान गायब हो जाते थे, वो सेपरेशन देते थे, गोपियां उनको ढूंढती थी फिर. तो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि वो गोपियां की जो एक्सटेसी थी उसको बढ़ाते थे. सो दिस इज कृष्णा हु जिनके जो मोहित कर लेते हैं, ही इज ऑल अट्रैक्टिव. उनके नाम का अर्थ ही है ऑल अट्रैक्टिव. वो सबको खींच लेते हैं अपनी ओर, मेस्मराइज कर देते हैं सबको. और उन्होंने जब राजसूय यज्ञ किया है युधिष्ठिर महाराज ने, they were greatest assembly of the elite men in the world, the royal and the learned orders, and in that great assembly Lord Shri Krishna was worshipped by one and all. तो उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा यज्ञ राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर महाराज ने किया, वहां पर भगवान को ही ग्लोरीफाई किया गया. वहां कृष्ण की ही चर्चा हुई, कृष्ण ही के ही दर्शन मात्र के लिए लोग वहां पर उत्सुक थे. And they worshipped him. और उन्होंने ही उनकी पूजा अर्चना की as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence. ये भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरे सामने हुआ है. तो वो सारों को महाजन है, सबको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम है, कृष्ण ही भगवान है. And I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. और वो कह रहे हैं इस मोमेंट को भी मैंने कैप्चर कर लिया अपने माइंड में, क्योंकि मैंने भगवान पर केंद्रित रहना है. एक बात वो कह रहे हैं गारंटी रखो, मेडिटेट ऑन कृष्णा, अपने मन को कृष्ण पे केंद्रित रखो. तो कृष्ण की लीलाएं, ही इज रिमेम्बरिंग दोस. वो सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो सारा वर्णन कर रहे हैं. तो यहां भी कह रहे हैं कि वो राजसूय यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में भी इतने बड़े बड़े ऋषि आए, महाजन आए, उन सबने कृष्ण की ओर ही सबने इंगित किया कि यही भगवान है. कह रहे ये मेरे सामने हुआ और मैंने इसको अपने मन में रखा, क्योंकि अंतिम घड़ी में मुझे इसी कृष्ण पर मेडिटेट करना है. सो दिस इज देयर कि हमें तो अंतिम घड़ी पता नहीं है, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, हमें ऐसा कोई वरदान नहीं है. सो हमारे लिए तो हर पल ही, एनी पल कैन बी हमारी मृत्यु का मृत्यु. तो इसलिए हमें हर पल रेडी रहना है, हर पल तैयार रहना है मृत्यु के लिए. तो हमें हर पल भीष्म पितामह जैसा अपने ध्यान को भगवान पर हर समय केंद्रित होना चाहिए. और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब हम अच्छे से जप करते हैं 2 घंटे एवरी डे. व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा हमारा एफर्ट होगा, कृष्ण की कृपा होगी. सो दिस इज वो कह रहे हैं. तो प्रभुपाद भी लिखते हैं कि one should, after gaining the victory in the battle of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, the emperor of the world, he performed the Rajasuya Yajna. The emperor in those days upon his, तो कह रहे हैं कि उस यज्ञ में भी भगवान को, कृष्ण को ही प्रोक्लेम किया गया, he is the worshipable Lord, he is the supreme Lord. अब वो कहते हैं कि I meditate upon Lord Shri Krishna, now present before me. Now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of mental speculators. वो मनमुख के हृदय में भी भगवान है. तो पर भगवान कहते हैं अगर मनमुख मुझे याद नहीं करना चाहता तो मैं उसको भुला देता हूँ, अपने बारे में उसको भुला देता हूँ, वो मुझसे और दूर हो जाता है. तो यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं सबके हृदय में वास करते हैं ये भगवान, मनमुखों के हृदय में भी है, and he is in everyone's heart. And then sun may be perceived differently, but the sun is one. सूर्य एक ही है. सूर्य को कोई कुछ भी समझ ले, सूर्य को लोग समझे, सूर्य के वो कोई भी कंसेप्शन लेके चले, सूरज तो एक ही रहेगा. सो भगवान एक ही है, उन जैसा ना कोई है
ना उनसे ऊपर कोई है, ना उन जैसा कोई है. He is the only one. So Shri Krishna is the only one. कृष्ण एवं अब सूत उवाचा, सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मने आत्मा नामावेश सो अंतवसा उपारमता. सो कह रहे हैं सो अंत श्वास उपारमता. अंत श्वास, अखीरला दम, अखीरला श्वास कृष्ण के लिए. सो भीष्म पितामह सूत गोस्वामी कहते हैं अब भीष्म पितामह ने जब ऐसा कहा उसके बाद उन्होंने इस देह को त्याग दिया. और ये आखिर शब्द उन्होंने कहे मैं उस भगवान पर मेडिटेट करता हूं. तो ये कहते ही उन्होंने देह त्याग दिया. His mind, speech, sight and actions he surrendered. They merged in Krishna and thus he became silent and his breathing stopped. और उनका सांस रुक गया. सो वो कृष्ण पर बोलते रहे कि मैं उस कृष्ण पर मेडिटेट करता हूँ, उस कृष्ण पर जिसने ये किया, जिसने अर्जुन को अज्ञानता से निकाला, जिसने गोपियों को सुख दिया, जिसने मेरे साथ मेरी प्रसन्नता के लिए मैंने जो कहा तो उसके लिए शस्त्र उठा लिए, पहिए को उठा लिया. इतना सब कुछ बोला और भीष्म पितामह शांत हो गए. उनका श्वास रुक गया. Knowing that Bhishma Pitama had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there was silent. सब कुछ शांत हो गया. सारी चिड़ियां भी, सब आवाजें शांत हो गई क्योंकि भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया. सो भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया और फिर कहते हैं फिर क्या हुआ. फिर सब देवी देवताओं के वहां दुदुम्बी, सो दुदुम्बियो है वहां पे ड्रम्स इन ऑनर, वो बजे और ऊपर से फूलों की वर्षा हुई. आसमान से फूलों की वर्षा हुई है. किस पर? भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया है. भीष्म पितामह पर फूलों की वर्षा हुई है और सबको शोकाकुल हो गए. युधिष्ठिर फिर से शोकाकुल हो गए, फिर से शोक हो गया उनको. एंड इट सेज द डिसेंडेंट ऑफ भृगु आफ्टर परफॉर्मिंग द फ्यूनरल. तो फ्यूनरल किसने करा है? सौनक ऋषि, भृगु मुनि के डिसेंडेंट है सौनक. उन्होंने फ्यूनरल किया है उनका और महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही फिर से ग्रीफ आ गया है. शोकाकुल हो गए हैं युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया. So Bhishma Pitama was not only a great family head of the Maharaj Yudhishthir but also was a great philosopher and friend to him, his brothers and mother. Since Maharaj Pandu, the father of the 5 brothers headed by Maharaj Yudhishthir had died, Bhishmadev was most affectionate grandfather of the Pandavas and caretaker of the widow daughter-in-law Kunti Devi. So Bhishma Pitama को बहुत glorify किया जाता था और भीष्म पितामह ने पांडवों का पूरा ख्याल रखा था पांडु महाराज के जाने के बाद. सो इट इज देयर कि बहुत लगाव था युधिष्ठिर को. युधिष्ठिर के वो फिलोसोफर थे, फ्रेंड थे और सारी राय देते थे युधिष्ठिर को. सो अब कहते हैं all the great sages glorified Lord Shri Krishna who was present there by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. अपने हृदय में भगवान को लेकर सब वहां से अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर गए. तो और महाराज युधिष्ठिर जो है, कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर को और पांडवों को लेकर कहाँ आ गए? हस्तिनापुर, दिल्ली आ गए. हस्तिनापुर आकर उन्होंने अपने वहां पर जो गंधारी और धृतराष्ट्र थे दोनों युधिष्ठिर के महल, युधिष्ठिर ने उनको वैसा ही राजभोग दिया जैसा वो कौरवों के टाइम में था. पर राजा इस समय युधिष्ठिर है और कहते हैं कि युधिष्ठिर ने कौरवों से पुत्रों से, कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनसे भी ज्यादा उनको सुख दिया है, आदर सम्मान दिया जो उनके अपने सगे पुत्रों ने नहीं दिया था. उससे ज्यादा धृतराष्ट्र को सुख और सम्मान दिया पांचों पांडवों ने. सो वो उनके साथ भगवान के साथ लौट आए और फिर कहते हैं पित्राचानुमता राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृ पितामहा विभो. इस श्लोक से इस अध्याय का समापन होने जा रहा है. कहते हैं आफ्टर दिस द ग्रेट रिलीजियस किंग
Yudhishthira executed the royal power in the kingdom strictly according to codes and royal principle approved by his uncle and confirmed by Shri Krishna. धर्म का राज्य चला. So धर्म के नियम हुए, धर्म पर चला, भगवान के जैसी भगवान की इच्छा थी वैसा राज्य किया युधिष्ठिर महाराज ने, और जैसा भीष्म पितामह ने शरशैया पर उन्हें ज्ञान दिया था वैसा ही राजभार किए संभाला युधिष्ठिर महाराज ने. So this is how the Pandavas took over the kingdom of Hastinapur and they became the Yudhishthira Maharaj became the king. So ये था the passing away of Bhishmadev. तो बहुत ज्ञान मिलता है भीष्म पितामह के त्यागने, शरीर त्यागने पर आपने ऑलमोस्ट पूरी भगवत गीता रिवाइज कर ली है. सो होल ऑफ द भगवत गीता वी हैव रिवाइज्ड अगेन विद भीष्म पितामह. सो भीष्म पितामह हर वो भगवान के उस मूड को, उस भगवान के उस फीचर को हमारे साथ उन्होंने फिर से दोहराया, हमें याद कराया. सो दिस वाज इंडीड अ wonderful chapter of this canto where the passing away of Bhishma Deva. आप सबने कल भीष्म पंचक खोला है, आज भीष्म देवा का जो ये अध्याय है इसका समापन हो रहा है. तो आपने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंट में से एक अध्याय पूरा कर लिया. तो आप सब बड़े फॉर्चुनेट हैं और आप सब भगवत गीता, हम जल्द ही मोक्ष एकादशी की ओर जा रहे हैं, एक और नया कि जहाँ भगवान ने गीता सुनाई है वहां पहुंचने वाले हैं. उससे पहले आप सबने गीता कंप्लीट कर ली है मेरे साथ. सो इट्स अमेजिंग थिंग एंड प्लीज ज्वाइन इन विद मी फॉर द मैराथन, द भगवत गीता मैराथन. हमें इस मैराथन का मैंने कल भी समझाया था कि ये मैराथन ऐसा है कि हम मेडिटेट कर रहे हैं भगवान पर, एक एक पल मेडिटेट करते हैं कि मुझे भगवत गीता बांटनी है, मुझे भगवत गीता स्पॉन्सर करनी है, मुझे भगवत गीता को और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आप सबको इसमें आनंद मिला है तो आप चाहते हैं कि औरों को भी मिले. So, जब ये इच्छा होती है तो भगवान हमारा सहयोग देते हैं. He blesses us. और उनकी कृपा मिलती है हमें. तो आप सबको चाहिए कि कृपा के पात्र बने. So we should all join together and engage in this marathon and with a target, with mission. और हर किसी को एक टारगेट लेना चाहिए कि हाँ मैं 108 भगवत गीता करूंगा. अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, किन्हीं से भी आप कर सकते हैं कि आप उन सबको प्रीच कर सकते हैं. उन सबसे आप ये कह सकते हैं कि ज्वाइन विद मी. ये इतना सुख देने वाला है कि हमें आनंद ही आनंद मिलेगा जब हम दूसरों को ये ज्ञान देंगे. So join with me every day and please go ahead with the Bhagavad Gita marathon. So I've shared the links on the WhatsApp group. I'll share it again in the evening, and any problem coming up, you can contact me anytime on the WhatsApp group and ask and be with me, and I can guide you, I can help you. So we all should be doing this marathon with all full enthusiasm, पूरे जोश के साथ, क्योंकि भगवान को याद रखने से अभी भीष्म पितामह ने सिखाया क्या करना है हमें, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. So how we think of Krishna, when we think of distributing Bhagavad Gita, we are thinking of Krishna. And feeling is when you feel indebted to Krishna. Yes, भगवान जो कह रहे हैं, I want to do it. So your feelings, भगवान हमारी feelings भी समझते हैं, thinking भी जानते हैं, feelings को भी समझते हैं. And then willingness. So willingness is when you say, yes, I can do it. And when you say, I can do it, you can do it. If I can do it, you all can do it. So that's it. So we end the class here. I'll see if any questions are there. Let me see. 5 minutes more. I'll just look around for questions. If any questions, I'll try to answer them all. So there is Laksha Parker, Kanchananand, Uma Kapoor, Kirti Sharma, Poonam Rora, Rakesh Sharma, Sunita Tulani, Ritu Himrajani, Veena Agarwal, Swati Lakshmi, Bomu Swati, Sona Vij, Renu Yoga, Deepti Nanda, Ankit Dua, Sunita Vaishnavi, Pooja Singh, Gujarati, Rinki Kamra, Nisha Gandhi, Archana Surana, Duck 143, Hare Krishna Mataji. Sometimes when I'm chanting and trying to listen to the words, I forget to move the beads. I try to keep looking to the Lord's feet while chanting to be more concentrated. Don't forget to move the beads, otherwise you'll have to chant
for more time. But in a way, it's good you're chanting for more time. But then don't forget to chant the bead. You get so engrossed in watching Krishna's feet. It's very nice. So Pooja Serene, Shama Mahajan, Sonia Tikku, Nilu Nagpal, how to donate Bhagavad Gita. Nilu, are you on my WhatsApp group? I don't think so. You're on my WhatsApp group. Join my WhatsApp group. I'll give you the link. I'll share the link with you, and you can sponsor the Bhagavad Gita, which we will be distributing in the colleges, universities, in the Tihar jail, in the hospitals, everywhere. So you can join in with us for that. Tanvi Mehra, Vinod, that is video analysis. Poonam Mehta, Arti Vadawan, Deepak Kapoor, Sharad Rajput, Anjali Limba, Deepak Kapoor, Rakhi Agarwal, Nagendra Sets. He's written some glorifications of Krishna. Burgal Manjushri, Sagaran Kalwani, Neha Narang. There is Shama Sagal, Ria Day. Mataji, yes, I will try to encourage more people. That's Amit, he says. Yes, he's done some Bhagavad Gitas with me and he's promising to do more. And I really appreciate many of you have done and many of you are saying that you will do more and you will try more. That means you will pay more attention to Krishna, you will feel more, think about Krishna more, and then if you're willing, Krishna is going to help you. सो देयर इज देयर कि हम भगवान के लिए हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हमें भगवत गीता करनी है आप सोच रहे हैं एंड देन यू आर फीलिंग इट यस थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग दीज थ्री थिंग्स कीप रिमाइंडिंग एंड दैट्स देयर Neha Bulchandani, Bhavika Khatri, Yogesh Kapoor, Kiran Gandhi, Geeta Rupal says, Mataji, what is the sentence? And Lord Krishna is with us. My sister-in-law asked me to ask you. Krishna is with us. The symptoms. आप ये कैसे सुन पा रहे हो आप कैसे सोच पा रहे हो दिस इज ऑल हु कैन हेल्प अस ओनली कृष्णा कैन हेल्प अस एंड जिन्होंने भगवान के मैं कहूंगी आनंदम बुद्धि वर्धनम अगर आपको सुनने में आनंद आ रहा है तो इट मीन्स यू आर फॉरगेटिंग द आउटर वर्ल्ड भूल जाते हो कि बाहर की दुनिया क्या है जब आप सुन रहे हो सो हु कैन गिव यू दिस फीलिंग इट कैन बी नन अदर देन कृष्णा सो कहा गया है कि जो बढ़ता है आनंद बढ़ता है जितना हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो आनंद बढ़ रहा है शांति मिल रही है तो दैट मीन्स कृष्ण मिल रहे हैं सो दैट इज वन वे टू चेक Anamika Jen on the Facebook says, I can just read. She says, I want to donate 108 Bhagavad Gita. So Anamika Jen, please contact me on my you're not on my WhatsApp, so please contact me on my Facebook page, Messenger. Or on the Facebook Messenger or the Facebook page Messenger. Please contact me there and then I will help you out with donation of the 108 Bhagavad Gitas. That's a very good feeling. 108 is a very auspicious number. So we should try at least to do 108. 108 लोगों के जीवन में तो हम बदलाव ला सकने का ट्राई कर सकते हैं और भगवत गीता जिसके भी घर जाती है उसको सुख और शांति जरूर होती है कभी ना कभी जब वो पढ़ेगा और 100% जिसके घर जाएगी वो एक ना एक दिन जरूर पढ़ेगा So this is there. Sudashai Bhavika Khatri, she says शंखा समाधान को ब्लॉक करिए ये शंखा समाधान के पास कोई समाधान नहीं है इसके पास सिर्फ शंखा है so he will be I've tried blocking him with the YouTube and you all please write to the YouTube to block him. Speed Hunter, Jyoti Nagpal, Hare Krishna. Yesterday I bought 2 Bhagavad Gita from the ISKCON and gifted to my neighbors, but credit goes to you. Haribol. Nagina Manchandash, Yashpal Joshi, Laj Lakyana. I can donate. Is it good? Will Prabhupada be happy? Yes, Prabhupada is happy with you. Sanjay Sharawat, Neeru Parashar, Neelam Royala, Rudraksh, Ritu Nishchal, Jai Kumar, Malvika Bhateja, Soma Bera, Sindhu Nair exist in non-living things or it is only in the Krishna is everywhere, kan kan mein. खंबे में से निकले हैं नट सिंह भगवान बनकर सीमा मल्होत्रा तनुष शर्मा Sangeeta Vijay, when medicine is not prescribed by doctor but it is beneficial for our health of fetus, can we use it? That's a tricky question. If we हम भोग लगाकर भगवान पे विश्वास रखकर खाते हैं तो हर चीज असर करती है आरती कुमारी अर्चना सुराना नीरज सूरी So on the Facebook there is
I'm looking for any question. Raghav Sharma is purple and red color. Hari Vishnu color. The purple, जो बादलों वाला रंग है जिसमें वर्षा भरी हुई है वो भगवान का रंग है. So this is there. मुझे तुलसी माला डालनी कब? Rinki Sharma asking डालनी है कब और कैसे धारण करूं? प्याज और लहसुन नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है. अगर नियम फॉलो करते हो तो धारण कर सकते हो. So let's end the class here. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhagavad Pad ki jai. Shri Gaurnitai ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Krishna Balaram ki jai. आने वाली मोक्षता एकादशी की जाए. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Hare Krishna. Please don't forget to share the lecture to the maximum. Hari Bol.